Hello everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Manisha Misra. I hope I'm audible. I have got a new mic. I hope I'm audible to you. But yeah, I'm going to switch on the noise cancellation thing now. I hope this makes a difference to you all. Wait. Yeah. Does it make a difference? If yes, then please write down in the comment section. Of course, I'm going to watch the entire video again, but yeah, if it does makes a difference, then this is going to be a good invest. So today I'm here to talk to you about something really important. I have seen this going around a lot. I have seen people struggling with it a lot. So I wanted to talk about this in a video, so or how to deal with heartbreaks, or how to deal with emotional breakdown, or how to deal with friendship issues and friendship breakups and everything. So while you are actually about to give your exam, that is the most important thing. So you must have heard people saying कि अगर कोई तुम्हारे साथ कुछ बुरा कर रहा है जब तुम्हारा एग्जाम होने वाला है, that is the worst feeling ever. So that is kind of true. I agree to it, because you know someone is going to give the exam and someone has been preparing for that particular exam and doing his or her best in every possible manner. So you should not be giving that person emotional trauma or something that will, make that person think about the unnecessary things which should not be the focus of his or her life, and neglecting the things which should be the focus of his or her life you know so there are certain points that I want to make it clear. I have written down in a diary. Let me bring it. I made it a point to think about it, realize the factors, and then looking into my own experiences. So I'm a 28-year-old girl, so I have gone through a lot of this a lot of times. So I know that how to tackle all these situations. So I don't bother myself a lot when things are, you know, things will happen in your life, but what you should actually prioritize things accordingly. तो तुमको पहली सबसे पहली बात है प्रायोरिटीज. प्रायोरिटीज तुम्हारा सेट करो, कौन सा ज़्यादा प्रायोरिटी देना है तुमको. इज योर एग्जाम इम्पॉर्टेंट, और योर रिलेशनशिप विद दैट पर्सन इज इम्पॉर्टेंट. अब तुमको अपना प्रायोरिटी इस चीज़ में सेट करना है कि तुमको ये एग्ज़ाम जैसे भी करके क्वालिफाई करना है, उस चीज़ के लिए मेहनत करना है, उस चीज़ के लिए 100% देना ज़्यादा ज़रूरी है, या यू रियली वांट टू इन्वेस्ट योर टाइम राइट नाउ ऑन फिक्सिंग द रिलेशनशिप विथ योर फ्रेंड और विथ योर बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड, योर पार्टनर, हस्बैंड, जो भी है. ठीक है. तो आई थिंक मोस्ट ऑफ द टाइम्स व्हेन वी आर अबाउट टू गिव आवर एग्जाम एंड वी हैव प्रिपेयर्ड फॉर इट, वैसे कुछ भी एग्जाम का फॉर्म भर लो और उसके बाद एग्जाम दो, वैसे लोगों के लिए नहीं है ये. जो एक्चुअली में तुम्हारा 100% दे रहे हो, तुम उस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो उस टाइम में अगर तुम्हारे साथ कुछ हो भी जाए ना, तो माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, डिस्ट्रैक्ट हो जाता है. तो उस चीज़ को अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश करो एंड सेट योर प्रायोरिटी की नहीं, अभी भाड़ में जाए दुनिया, जो भी होना हो जाए, but I have to focus on my exams. You have to focus on your exams. You have to make yourself mentally strong enough to be able to discipline yourself, to be able to have a control on your emotions. तो इस चीज़ के लिए ना हमको अपने आप को मेंटली स्ट्रांग बनाना ही पड़ता है. यू नो इनफैक्ट आई वुड लाइक टू से कि ये सब चीज़ें बहुत टेम्परेरी होते हैं. या तुम्हारे जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का इश्यूज़ हो, या पार्टनर्स के बीच में इश्यूज़ हो, या हस्बैंड वाइफ के बीच में इश्यूज़ हो, या कुछ भी फ्रेंड्स इश्यूज़ हो, जो भी इश्यूज़ हो, which can be resolved later on. So you do not have to focus on that right now. अभी तुम्हारा एग्जाम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर एग्जाम चला गया ना, फिर से नहीं आएगा. ये जो अपॉर्चुनिटीज़ तुमको मिल रहे हैं, ये बार बार नहीं आता है. सो इट्स बेटर टू कीप इट aside. Don't talk to them, don't give any answer, don't give justifications, don't waste your time giving explanation, don't ask for a justification, don't ask for explanation either. Just leave it there. Just leave it there और उनको बोलो कि अभी नहीं. Let me complete my exam, let me give my exam, then we will sit down and sort this out. ठीक है. या तो और अगर if you are going through some sort of breakup or something, if someone has break up with you before your exam, तब भी रख लो इमोशंस को. इतना मतलब you have to be harsh to yourself. बोलना बहुत आसान है, दिस इज क्वाइट डिफिकल्ट. सो आई हैव बीन एक्सपीरियंसिंग दिस अ लॉट ऑफ टाइम्स. सो आई नो यू हैव टू कंट्रोल योर इमोशंस. जितना भी रोना धोना है, जो भी करना है, ये बाद में करना. इस चीज़ को तुम अपने ध्यान में रखो कि अभी मेरे को रोना आ रहा है. मतलब आई मेक इट अ पॉइंट कि अगर किसी चीज़ के लिए मुझे बुरा लग रहा है, या किसी ने मेरे साथ कुछ बुरा किया, या कोई दोस्त मेरे साथ नहीं है अभी जो हुआ करता था पहले, या किसी दोस्त के साथ, या किसी मतलब पार्टनर के साथ, या किसी के साथ भी कुछ इश्यूज़ हो गया, तो मुझे जितना बुरा लगता है मैं उतना पढ़ती हूँ.
आई मेक श्योर कि मुझे रात के 2 बजे 3 बजे भी अगर उस चीज़ के बारे में सोच के मुझे बुरा लग रहा है या रोना आ रहा है, तो मैं उतना पढ़ूंगी, फिर पढ़ूंगी, मैं 3 बजे तक भी पढ़ूंगी, 4 बजे तक भी पढ़ूंगी, 5 बजे तक भी पढ़ूंगी, जब तक मुझे बुरा लगेगा तब तक पढ़ूंगी। इतना पढ़ूंगी कि आई विल फील टायर्ड एट वन पॉइंट एंड आई विल गो टू स्लीप। सो मेक इट श्योर कि यू हैव टू उस उस हार्ट ब्रेक या उस इमोशनल ब्रेकडाउन को कन्वर्ट करो हार्ड वर्क में। दैट विल हेल्प यू अलॉट। उस चीज़ को अपने स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करने की कोशिश करो। दैट विल हेल्प यू अलॉट। सो दिस इज़ माई सजेशन। जब भी तुमको बुरा लगे, जितना ज़्यादा बुरा लगे, जितना ज़्यादा रोना आए, उतना ज़्यादा पढ़ाई करो, उतना ज़्यादा पढ़ाई करो। ठीक है? दैट विल हेल्प अलॉट। दिस इज़ अ ट्रिक दैट आई ऑलवेज अप्लाई। जब भी मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है एंड आई डोंट हैव टाइम टू वेस्ट, तो मैं और ज़्यादा पढ़ाई करती हूँ, बहुत ज़्यादा पढ़ाई करती हूँ। सो या डिसाइड करियर या रिलेशनशिप्स। अभी करियर इंपॉर्टेंट है, रिलेशनशिप्स कैन बी सॉर्टेड आउट लेटर। इफ दैट पर्सन और दैट ग्रुप ऑफ पीपल और whoever actually matter to you or actually they know that you matter to them, then they will wait। अभी तमाशा नहीं करेंगे वो लोग, दे विल वेट। और अगर वेट नहीं कर रहे हैं तो आई डोंट थिंक सो यू शुड कंसिडर गिविंग देम एनी चांस। ठीक है? या तो आई हैव सर्टन सॉन्ग प्रेफरेंसेस एज वेल इन ऑर्डर टू मोटिवेट माई सेल्फ, तो मैं वो भी शेयर कर सकती हूँ अगर तुम लोग चाहो सुनने के लिए। लेकिन अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंसेस एंड चॉइसेस यू कैन प्ले द म्यूजिक। अगर तुम म्यूजिक सुन के पढ़ने वाले इंसान हो तो म्यूजिक अपने प्रेफरेंसेस के हिसाब से यूज करो। अरिजीत सिंह नहीं, अरिजीत सिंह नहीं। आई लव अरिजीत सिंह अलॉट, बट पढ़ाई के टाइम में नो। पढ़ाई के टाइम में आई वुड रैदर प्रिफर, मुझे लवी डवी सॉन्ग्स या मतलब प्यार भरा सॉन्ग या सैड इमोशनल सॉन्ग्स, ये सब मुझे नहीं सुनना होता है, क्योंकि मुझे नहीं डिस्ट्रैक्ट होना होता है। मैं उस लिरिक्स को फील करना नहीं चाहती हूँ, मुझे फील ही नहीं करना है कुछ भी। यू डोंट हैव टू फील एनीथिंग, यू डोंट हैव टू मेक योर सेल्फ गो थ्रू दैट इमोशनल पाथ। तुम उस चीज़ के बारे में सोचो ही नहीं। तो वट आई डू इज़ आई लिसन टू म्यूजिक विदाउट वोकल्स। बहुत सारे म्यूजिक ऐसे हैं, एकदम धूम धड़ाका वाला म्यूजिक, जो सिर्फ म्यूजिक इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक्स हैं जिसमें वोकल्स नहीं है। वोकल्स काइंड ऑफ डिस्ट्रैक्ट मी अलॉट, सो आई डोंट प्रेफर वोकल्स वाला म्यूजिक। तो ये मैं प्रेफर करती हूँ। और उसके बाद बहुत सारे सॉन्ग्स हैं उरी के, उरी मूवी के, वो बहुत ज़्यादा मुझे मोटिवेट करता है। तो उस लक्ष्य मूवी का बहुत सारा सॉन्ग्स है, अंग्रेजी मीडियम हिंदी मीडियम फिल्म्स का कुछ सॉन्ग्स है जो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। देयर आर सेवरल सॉन्ग्स, अगर तुम पढ़ाई के मोटिव एस्पायरेंट्स में से भी बहुत सारे ऐसे सॉन्ग्स हैं या पोइट्रीज हैं जो बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं। सो देयर आर सेवरल अदर, बहुत सारे ऐसे हैं जो तुमको हेल्प करेगा। सो या यू कैन गो फॉर दैट। एंड कीप योर इमोशंस एंड फीलिंग्स कम्प्लीटली आउट ऑफ द वे। ये मैं बोल चुकी हूँ तुमको, कीप योर इमोशंस एंड फीलिंग्स कम्प्लीटली आउट ऑफ द वे। जब तक एग्जाम खत्म नहीं हो जाता, तुम एग्जाम हॉल के बाहर नहीं निकल जाते, तब तक तुमको कुछ भी फील करना नहीं है। हार्ट ब्रेक हो गया, ठीक है, देख लेंगे, बाद में रो लेंगे। एग्जाम खत्म हो जाने दो, उसके बाद महीने बैठ के रोते रहो। एग्जाम खत्म हो जाने दो। यू हैव टू फोकस, यू हैव टू मेक योर सेल्फ सो स्ट्रांग दैट उस समय चाहे जो भी हो जाए, इट इज़ नॉट गोइंग टू बॉदर यू। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मोर्टेलिटी, मतलब डेथ। ऑफकोर्स किसी का अगर अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गया तो यू कांट ऑब्वियसली कंट्रोल योर इमोशंस, बट ये हार्ट ब्रेक्स वगैरह ये सब बहुत टेम्परेरी चीज़ें होते हैं यार, इसमें टाइम वेस्ट मत करो। जो भी 19 20 22 25 साल के हो, ये सब चीज़ों में टाइम वेस्ट मत करो। मेक योर करियर, हैव टू फोकस ऑन योर करियर। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये रिश्ता निभाने के लिए आई हैव एक्सपीरियंस दिस अलॉट, कि मैं दोस्ती में हो या रिलेशनशिप्स में हो या जो भी हो, उसमें मैं टाइम इन्वेस्ट करती चली गई। आई यूज टू क्राई अलॉट फॉर आवर्स टुगेदर, एंड सामने वाले को मिल गया यार, मैं बैठी रह गई, मैं रोती रह गई। सो यू नो I really don't feel कि it is a necessity to give so much importance to all of your emotions. You can ignore some of your emotions while you are focusing on your exam. You have to stay consistent towards your exam, towards your preparation, towards your revision, and you do not have to feel everything. अभी feel नहीं करना है कुछ भी इमोशन, मतलब एकदम खुद को इमोशनलेस बना दो, एकदम खुद को हार्टलेस बना दो। अभी भाड़ में जाए दुनिया, जो भी कुछ हो रहा है होने दो। कोई कुछ बोल दिया, कोई कुछ सुना दिया, कोई छोड़ के चला गया, जाने दो, जाने दो। अगर लौट के आना होगा तो आ जाएगा, नहीं आना होगा नहीं आएगा, मार में जाए। आई हैव टू फोकस ऑन माई स्टडीज। करियर इंपॉर्टेंट है टू ऑल द गर्ल्स एंड बॉयज ऑफ दिस पर्टिकुलर एज जो प्यार के लिए मरे जा रहे हो। ये मत करो, ये गलती मत करो, ये गलती मत करो। फोकस ऑन योर करियर, दैट इज गोइंग टू हेल्प यू फर्दर। ये सब नहीं हेल्प करेगा आगे, ये ध्यान दो। ये बात बहुत ज़रूरी है। बोलने में बहुत हार्श लगता होगा, सुनने में भी बहुत हार्श लगता होगा, लेकिन यही, this is truth. Career is going to help you rather than any certain kind of relationships. There is a certain thing that is bothering you a lot,
तो तुमको अगर लग रहा है कि कोई चीज़ ऐसा भी है जो तुमको बहुत ज़्यादा बॉदर कर रहा है और यू कैन जस्ट कांट टेक थिंग्स आउट ऑफ योर माइंड, देन इट इज़ बेटर टू राइट इट डाउन। मैं सेवरल वीडियोज़ में ये इंसिस्ट कर चुकी हूँ कि डायरी राइटिंग करो, दैट विल हेल्प यू अलॉट। जर्नलिंग करो, दैट विल हेल्प यू अलॉट। अगर कुछ भी नहीं हो सकता तो कागज़ में लिखो, कागज़ में लिखने के बाद उसको फाड़ के फेंक दो, कोई और भी नहीं पढ़ेगा, तुम भी दोबारा नहीं पढ़ोगे। यू जस्ट हैव टू take it out from your mind, write down somewhere, forget it and then sit to study, फिर पढ़ने बैठो। ठीक है। मेंटल पीस के लिए हनुमान चालीसा बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, भगवत गीता बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। मेडिटेट करो, अगर ये सब भी नहीं करना है तो मेडिटेशन करो। मेडिटेशन इज़ रियली इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है मेडिटेशन। यू कैन गो फॉर इट। स्टे अवे फ्रॉम फोन, या दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। हम लोग का क्या हो गया है कि आजकल के जनरेशन में सोशल मीडिया हैज़ बीन प्लेइंग सच एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ दैट वी हैव मेड इट अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। तो आई हैव बीन थ्रू, मैं उस जनरेशन की लड़की हूँ जहाँ पे कि हम फॉर्म भरने के लिए घंटा घंटा जाके वेट किया करते थे। ठीक है, वी यूज टू गो एंड वेट फॉर आवर्स एक फॉर्म भरने के लिए, इतना ज़्यादा बफरिंग हुआ करता था। तब लाइफ वॉज नॉट दैट डिफिकल्ट। तो हम सोशल मीडिया को अपने लाइफ में इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे दिए हैं। सो इफ what happens is, if you're addicted to your phone, if you're addicted to talk with someone, chat with someone, तो तुम्हारा बार बार फोन पे हाथ जाता रहेगा देखने के लिए कि कोई मैसेज आया क्या, कोई रिप्लाई आया क्या, कोई कॉल आया क्या, कुछ बोला क्या, किसी ने कुछ अपलोड किया, या कोई स्टोरी अपलोड हुआ क्या, कोई स्टेटस अपलोड हुआ क्या। ये सब भाड़ में जाए यार, ये सब चीज़ों के बारे में अभी मत सोचो। डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन ऑल दिस थिंग्स, यू नो। सो आई वुड रेदर से कि तुम अपने पेरेंट्स को फ़ोन दे दो। अगर तुम्हारा फ़ोन का यूसेज नहीं है तो फ़ोन दे दो, और अगर यूसेज है तो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड, स्टडी विथ मी सेशंस अवेलेबल होता है यूट्यूब चैनल्स में, ओपन करो और उसके साथ पढ़ाई करो। यू डोंट हैव टू गेट डिस्ट्रैक्टेड। ठीक है। मम्मियों को दे दो, मम्मी वापस नहीं देती, मम्मा नहीं देगी वापस। उनको एक बार तुम बोल दो कि मुझे डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, फ़ोन ले लो, तो वो नहीं देंगी, कभी भी नहीं देंगी वापस। तो या दैट विल बी अ बेटर थिंग, क्योंकि तुम्हारे पास अगर आसपास फ़ोन रहेगा ना तो तुम्हारा बार बार दिमाग उसमें जाएगा। एक बार चेक कर लूंगी, एक बार देख लेती हूँ, एक बार देख लेती हूँ, थोड़ा सा देख लेती हूँ, क्या इतना तो पढ़ाई कर रही हूँ, आई हैव जस्ट वांट टू स्क्रॉल फॉर 5 मिनट्स। वो 5 मिनट्स का स्क्रॉल कब 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा हो जाएगा, यू डोंट इवन नो। आई हैव बीन फेसिंग दिस, इवन नाउ आई फेस दिस अलॉट। तो मैं स्क्रॉल करती नहीं हूँ, आई जस्ट, मतलब मैं सोशल मीडिया निकाल दी हूँ अपने फ़ोन से, ज़्यादा मैं यूज़ नहीं करती हूँ। कभी 5-6 दिन में एक बार अगर कुछ ऐप यूज़ करने का मन कर गया तो कर लेती हूँ 1-2 घंटे के लिए। उसके बाद मेरे को खुद ही गिल्ट फील हो जाता है, तो मैं फिर उसको निकाल देती हूँ, अनइंस्टॉल कर देती हूँ। सो जस्ट डिलीट ऑल द सोशल मीडिया। ये बहुत ज़्यादा है, मतलब तुम लोग को डिस्ट्रैक्ट करेगा। तो या, और अगर हो सकेगा तुमको नहीं चाहिए, अगर फ़ोन तुम्हारा अगर यूज़ ही नहीं हो रहा है पढ़ाई में, तो यू बेटर गिव इट टू योर पेरेंट्स। या, दीज आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स दैट आई वांटेड टू शेयर विथ यू इन ऑर्डर टू हेल्प यू इन डीलिंग विथ हार्ट ब्रेक्स, और डीलिंग विथ इमोशनल ब्रेकडाउन, और डीलिंग विथ डिप्रेशन, और सम सॉर्ट ऑफ थिंग्स व्हाइल यू आर गोइंग टू गिव योर एग्जाम। ठीक है। तो फोकस ऑन योर स्टडीज, फोकस ऑन योर एग्जाम्स। ऑलवेज रिमेंबर, दिस इज अ सजेशन फ्रॉम योर, जो तुम मनीषा मिश्रा को देखते हो यूट्यूब में, मेरे ओर से सबसे बड़ा सजेशन यही रहेगा हमेशा। तुम जो 20s में हो, 20 से 25, 27 तक के जो जितने भी हो, मैं 28 हूँ, मैं तुमसे थोड़ी बड़ी हूँ, तो मैं तुमको यही सलाह दूंगी कि मेक योर करियर द फर्स्ट प्रायोरिटी। लाइफ में सब कुछ टेम्पररी है। तुम्हारा पैसे कमाना, मनी मैटर्स अलॉट, करियर मैटर्स अलॉट। लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रिलेशनशिप्स आते जाते रहते हैं, टूटा बनता रहता है। यू डोंट हैव टू वेस्ट टाइम ऑन दैट। अभी नहीं ज़रूरी है, बाद में देख लेंगे, वी विल फिगर इट आउट लेटर। लेकिन अभी व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द 20s में जितने भी सारे हैं लड़के लड़कियां, अभी अपने करियर पे ध्यान दो। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, यू नो। या, this is all that I wanted to share with you. I just wanted to make sure that you guys are, doing well for your exams, and I have been seeing so many of you are working hard, really hard for your exams. बहुत सारे several exams तुम दे रहे हो. I have seen this, that people are giving their 100% in several other exams. तो I really wanted to make sure कि तुम लोग, अगर तुम लोग बोलोगे तो नहीं मुझे आके पर्सनली कि मेरा इमोशनल ब्रेकडाउन चल रहा है या मेरा हार्ट ब्रेक हो गया है, तो आई रियली वांटेड टू बी देयर फॉर यू। आई जस्ट वांटेड टू मेक श्योर कि तुमको ये सारे पॉइंट्स पता हो कि तुमको कैसे डील करना है, क्योंकि ये चलता है, क्योंकि दिस इज द लाइफ वी आर लिविंग, वेयर यू नो
तुम्हारा साइमल्टेनियसली सब कुछ चल रहा होता है। ये 20s का टाइम जो है, 21 से लेके 28, 29, 30 तक का टाइम है, इसमें तुम करियर भी सेट करोगे, तुम्हारा सोशल इन्फ्लुएंस भी बहुत ज़्यादा रहेगा, सोशलाइजिंग भी बहुत ज़्यादा रहेगा, फ्रेंड्स ग्रुप्स बहुत सारे बदलते रहेंगे, कुछ दोस्त आएंगे, कुछ दोस्त जाएंगे, कुछ के साथ तुम्हारा क्लोजनेस बढ़ जाएगा, कुछ लोग तुमको धोखा देंगे, बहुत कुछ चलता रहता है लाइफ में। मीन वाइल करियर भी चलता रहता है, करियर में भी तुमको अच्छा करना होता है। सो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन, वंस यू एंटर टीन एज, तो भाई बहुत मजे के होते हैं। टीन एज इज नॉट डिफिकल्ट, टीन एज बहुत मजे के होते हैं। एडल्टहुड इज द रियल डिफिकल्ट थिंग। जब तुम एडल्टहुड को एंट्री करते हो तो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स, एक साथ बहुत सारी चीज़ों का प्रेशर आ जाता है। सो आई रेदर से यू की यू फोकस ऑन योर करियर, सब कुछ छोड़ दो, करियर में फोकस करो, बहुत ज़्यादा काम आएगा तुमको। ठीक है? या दिस इज ऑल दैट आई वॉन्टेड टू शेयर विथ यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। एंड और बोलो मेरा माइक मैं यूज़ कर रही हूँ कैसे सुनाई दे रहा है, अच्छा सुनाई दे रहा है कि नहीं, तुम लोग कमेंट सेक्शन में बोलो। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। या दिस इज ऑल दैट आई वांटेड टू शेयर। बाय।